जेनिस टेम्पलेट नहीं हुआ है। अच्छा स्टार्ट। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ बोलो बोलो। नहीं मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। तेरे पास आया क्या? हाँ तो कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं। अब जो आया तो बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 दिन में क्या कर सकता हूँ। आपने मेरा क्यों नहीं मेरे को पहले? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मालूम का फोन आ भी बोलो, आपने मेरे को पहले सीरियस क्यों नहीं भेजा? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सही बात है। चल ठीक है, ओके ठीक है। सब फैन ऑफ करो। The most important topic in OOPS. Most important topic. The most important. स्टार्टिंग से पढ़ना है OOPS सैटरडे को 12 बजे। हाँ जी सैटरडे को प्लीज। स्टार्टिंग न्यू बैच ऑफ OOPS और सैटरडे को फ्रेमवर्क भी OOPS साथ चलेगा। वर्चुअल फंक्शन बता तो दिया। वर्चुअल फंक्शन लगाओगे तो बी टेबल बनेगा। अच्छा प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके चलो ठीक भाई बता। मेरी कहता वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा? स्पेलिंग करना जरा, कहाँ गया स्पेलिंग करना टैबलेट पे? कल आप जो भी पढ़ाऊंगा ना, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग लेना, बिल्कुल नॉइज फ्री रिकॉर्डिंग, पॉइंट का नॉइज नहीं। I have seen in OOPS concepts, we start with the class. So the class and object. So we have to have a good knowledge of class and object. And class and object. Obviously, object is a resultant of class. Fine, because class is a logical and object is a real. Fine. So object is a resultant of class and object is a outcome of the class. Fine. So if class without object is a logical entity, no existence. So we need to have an object of having a class. Otherwise, if I don't create an object, I assume everything is static. So class can have a static function, I can call by the class name. So I don't need to go for creating an object of that class. So I start the class because class is a service which can have collection of functions and we can use later on, and we can go for reusability of a class. And the base part of a class, we can
collect several varieties in a single place, and that's why the Balagur Swami say class is a template. Someone say class is a blueprint. Fine. So it's good for getting a basic concepts called blueprint and template. But you have to convince why it is called blueprint or template. So class is a sorted, class is a collection. So we can collect several items and we can wrap in one class called master, teacher, laptop, whatever. So the name signify class teacher means there is a information regarding to what? Teacher. So we can have a sorted of items in one place called class. And later on we can use by the object and all there. So class and object. Then I talk about the static variable. I talk about static functions. If you want to call any function repeatedly, you go for making a static function. You can prevent from creating an object of that class. So then come back to point. A static constructor. I want to run any program only once for the whole lifetime. You go for static constructor. Because a static constructor will load only once, and class will load into memory. And per object it will make a new constructor. So there is a major difference between static constructor and the what? The constructor called default one. Default constructor means for per object it will call the what constructor, and you want to have any code which can execute only once the whole life, you go for static constructor. Let's say booting time detections, which happens only once the whole lifetime. You go for it. BIOS reading, RAM reading and all. You want to go for executing a program only once, you go for static constructor. And for per object you want to go for running any program, you go for default constructor. So then we have a static class with the entire information of one class is common to all the classes. You go for a static class. So a static class, an abstract class and a sealed class. A static class, abstract class and sealed class. But class cannot be virtual in case of C# and Java. It's very tricky terms, 3 topics. So if you go for attending my class of 10 times of OOPS, then you can get what is OOPS. First time, 70% things goes off. Second time, okay, you're getting little bit. Attending 3 or 4 times, you can get a OOPS. So I'm starting a new batch tomorrow. Oops, you go again. Attending my class a number of times, you can get a little bit idea to what is oops. Fine. So now I have a chance to go for implementing, explaining a static class, abstract class, and the what your sealed class. Now there is a class called A. If class is called A, it has own individualities, it has own persona and own functions and own methodologies. It has several objects. अरे यार क्लास के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक शॉपकीपर का, एक शॉप का कस्टमर्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट. Shop is a class and customers are what you are? An object. Class called college, students are called an object. तो इस क्लास के ठीक से सुनना प्लीज. यार आप समझ दो प्लीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्लीज. उसको आप एलैबोरेट करो इन जगहों को. मैं इनको कैसे समझाऊं? स्टैटिक क्लास तनु तपन. It's tough to explain in interview. If man is really is man of really logical, there is a chance you can have some problem. So I'm trying to convince what is static class. Before going to deal to a static class, you don't just talk about the class. There is a class, to take a better name. There is a class, suppose ABS, my first class. There is a second class, suppose GA angle OGM. Fine.
third class, call your GSS class. I have 3 classes. Fine. And what is object? It's a belonging to class. It's a belonging of class. So fathers have a 3 child. Fathers have a 3 child. The 3 objects belonging to same class called father. Getting? So now in this I have suppose 3 objects. These are belongings of the class alias. And what is an object this time? The students are an object. Again Galgotia got a main G1, G2 and G3. They are 3 belongings of the what your Galgotia. Again GSS. Now these 3 objects can call member function of a class. So these 3 objects are getting services by functions. College arrays the class, college arrays the what? Classes, and students are availing those classes. So why do we have a functions within a class? Why do we make a functions within a class? So that multiple objects can call that functions. But if class without functions, I don't think so. I require any belongings there. If college without having better education, I don't think so. You can have students in that college. Look at today, uncle. ILM college having only 6 admissions. 6. HIMT college Greater Noida had admission last year 117. 117. इस बार उसके 11 एडमिशन, 11 एडमिशन इन MCA. KL मोदी, कोई है बच्चा KL मोदी का यहाँ? KL मोदी इस बार आपके 6 एडमिशन. मैं गया, Girish Sharma is HOD of the HIMT college. Sandeep, why I'm getting down? मैंने कहा सर बोलूंगा तो बुरा नहीं मानोगे ना. If you are trying to getting a student face and putting into infrastructure of a college, only infrastructure, then how you can get a more students? You get a fees and call the companies, provide a better facilities for the education terms, better libraries, and call expert for teaching several topics. I hope you can have a students. But your entire money goes to what? Only for infrastructure. How you can have? अरे आप सर जाओ ना कॉलेज, देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा. आलिशान बिल्डिंग बना रखा है. एकदम इकट्ठे चलते हैं. अब एक पूरा सेंटर एक पूरे क्लासरूम के बराबर. ऐसे 15-20 क्लासेज हैं. वहाँ तो ड्राइवर रखी हुई, तो डायरेक्टर सारा बैठा होगा, पूरी AC रूम चिल्ड है, आप उससे बात नहीं कर सकते. मैंने कहा मेरे को अगर आपने बुलाया तो मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, चाहे आपको बुरा लगे. भगा दो, हमें क्या करोगे भगा दो. एक दिन इकट्ठे चलते हैं. चलो, तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में बुलाया था मेरे को, मैंने सुना दिया. मेरे साहब से कहा मेरे को निकाल दो कि मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या है. बट इट्स अ वेरी फैक्ट. Come back to point. So now, if there is an object of that class, you have to have a service for that objects. That's why I make up functions. You call me, you call my functions and get the output. But if you have called me, definitely I will provide the better output to you. So look at the relation between function and object. Why function within a class? Sir, why function within a class? So that the services can be utilized by the objects? Objects.
सारे बोलेंगे चक्कर ये ना गधे. Why function within a class? It means the class is empty. ये लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बेटे बैनर पैम्पलेट्स अपने एडवर्टीजमेंट के पीछे लाखों रुपए. जाओगे आप यहाँ से दिल्ली टू मुजफ्फरनगर रुड़की तक जाओगे, रुड़की तक आपको पूरा मिलेगा वो. ओ बाय गॉड, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं. So he is really getting a student by the marketing terms, but not the quality. The simple method is how you can make a fool to someone and how long. तुम कब तक किसी को फूल बनाओगे यार? How long I will see you right now? This business का basic money है, तो how long you can get this money? You have to provide infrastructure, not in terms of all this. You have to anyway come back to point. If there is a class having a functions, why bloody function within a class? So that I can show my potential, I can show my output, my capabilities to you. You call my functions. अब आओ आपको मैं दिखाता हूँ, अंकल लेके आओ आपको मैं दिखाता हूँ, 3 bedroom का फ्लैट आओ दिखाता हूँ आपको मैं. If you come I can show you. But you have to come. Moreover, the functions are private to the class, so that they are not. No, baby. If you make a function within a class as a privately, it means you can always show within a class, not to others. Within a class, right? Yeah, he is providing a service, not to only localize of Lajpat Nagar or Stock class. He is running a business. He can show his potential to anyone in this world. But sir, in this context, suppose we are talking about 3 colleges out here, ABS, There are 3 entities. The 3 separate objects. So there are 3 objects, A1, A2 and 3. They are students, right? Now, there is another college, G2, GAL, with But these G1, 3 ones yes. are belonging to GAL, GAL. and if they want really provide a better functions and a better output, so you will have a less objects after some time. That's fine, sir, but how can we access the functions of ABS by the students If of you make the function as a public, you can go for properties. But is that acceptable? Like that is a separate. Yeah, you are running a very college. Why you are running college? Not only for localized students. Anyone can avail your service. So he's paying for that, no? Look at JSS College. Guys from UP, Bihar and all. That's right, sir. But how can the students of GAL avail the services of ABS? They can go for counseling. They can go for counseling. But when he's become a part of this college, that object no more concerned to what you are. Well, go to you. Because at one time he cannot pursue to education. Either he can go for attending a class in MC of JSS or ABS. He cannot have a 2 degree at the same time. Don't try to coordinate, boss, please. Look at 3 class or individual, and there are 3 objects of every class as an individual. ठीक है? अब देखो, यहाँ बेटे एक वेरिएबल है, मान लो int C area. It's a college area. If you ask the first object, what is the area of the college? It says a square feet of 100. Second से पूछा कितना है जी? 100. Third से पूछा कितना है जी? 100. हर ने सेम जवाब दिया. It means if any information is common to all the belongings of that class only, mark it as a static. Sorry, can you repeat that? अगर बेटे कोई भी information, sorry वो बेटा बोलो. If any information is common to all the what objects, or there is a shirt belonging to same class, mark as a static. So why not you can explain your knowledge by making a diagram. डार्लिंग कांस्टेंट कर दोगे, साले ये कहोगे तुम्हारा कॉलेज एक्सटेंड नहीं हो सकता है, एरिया वही साला फिक्स रहेगा. बट एस्टैब्लिश्ड हियर नेवर बी चेंज बेबी, दैट इज कांस्टेंट. If any information is served to
commonly to all the belongings marked as static. चले बोलेंगे नहीं, से गुस्सा आता कर हूँ देख कर, बोलेंगे नहीं। मेरी रियाज हो रही है बालक, मेरी रियाज, तुम्हारी नहीं हो रही है। If any information is common to all the belongings, every father is static for the child. So static value can later on can be changed. Yeah, by making a static function. If you have got a 3-bedroom flat, the bathroom can be common to all the rooms. So what is bathroom? It's not a property for any single room. It's a common to all the 3 bedrooms. When any information is common to or common, देखो गधे जानवर को लिख रहा है कि नहीं सर? बदतमीज। लिखते चलो, सुनते चलो, बोलते देखते चलो मुझे। मल्टीपल थ्रेडिंग करो साथ में। If any information, लिखते चलो बालक, याद नहीं रहेगा बाद में। So what is static variable? So if you start explaining Manish without really making any diagram, it's a very hopeless time in an interview. You have some cause why you have made a static variable. I have class AVS having 3 objects. It means this class AVS is providing a service to what? All the 3 objects. And they can expect more objects if I provide better service. It's a AP equation, 1 plus 2 plus 3 plus n. But this can be n if you go for having a better service. So now, but some information can be common to all the objects, some information, and some information never be common to what? All the objects. Like a roll number, it should be unique for all the objects. These fees transactions or fees product transactions never be what? बेटा फीस का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सबका अलग अलग, फीस इज गॉन, द वैल्यू ऑफ द फीस इज कॉमन बट अमाउंट इज डिफरेंट वट एवर इज देयर। तो फीस आपका स्टैटिक है नहीं, मेंबर। तो रोल नंबर आपने क्या लिया बोलो? इंट RNO, सॉरी रोल नंबर RNO। अब ये बेटा ये वेरिएबल जो है इस ऑब्जेक्ट में भी गया, ओके, और क्या गया इसके ऑब्जेक्ट में भी गया। ठीक है, पूछ लो वालों को डाउट पूछ लो मुझसे। तो व्हेन इंफॉर्मेशन, अब आपके घरे में क्या है, एक रोल नंबर आ गई, आपको कॉलेज रोल नंबर दे दिया और क्या दिया, आई वांट टू गो फॉर मेंबरशिप, इंट मेंबरशिप MB नॉट वेस्ट टाइम। आपके घरे में क्या आ गया, एक और क्या आ गया बोलो, मेंबरशिप आ गया। अरे बोलो क्या क्या तुम कॉलेज से लेकर आ, दिखा जाओ बैग में मेरे को, लाइब्रेरी मेंबरशिप। एग्जैक्टली, ये सब क्या हुए बॉस, ये सब इंडिविजुअलिटीज में सेपरेट हुए। अब देखो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा क्लास में, अब 3 ऑब्जेक्ट थे तो पर के पास क्या गए, 2 2 2। अरे बोलो यार, बट ये जो एरिया है इट इज कॉमन टू ऑल दी वर्ड। अगर बेटा इसको मान लो नहीं बनाएंगे वी स्टैटिक तो ये यहाँ आ जाएगा, देख लो ये मेमोरी ब्लॉक है बेटे तपन, ये मेमोरी ब्लॉक है। तो आपको कन्विंस करना है उस लेवल से। तो देखो 3 मेमोरी ब्लॉक हो गए, अब 2 बाइट सही 4 बाइट 4 बाइट और 4 बाइट, इन कितना रहेगा 4 बाइट, तो 4 × 3 12 बाइट्स एक ऑब्जेक्ट की साइज हो गई। ठीक है, 4 × 3 12 बाइट्स, तो 12 12 12 36 बाइट्स आपके हो गए। रैम से माइनस कर दो, पूरा का देखो मैथमेटिक्स पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो। तो 12 बाइट सोच लो जा रहा है एक ऑब्जेक्ट का साइज, और 3 ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहे हैं उसी सिस्टम के रैम के ऊपर, तो 1 GB रैम से माइनस कर दो 36 बाइट्स। अब ऐसे 50 ऑब्जेक्ट होंगे यार। बस आप देखो ना,
अब इसे क्रॉस तो नहीं कर सकता, अब इसको क्रॉस करो, इससे क्रॉस करो, इस ब्लॉक को क्रॉस करो, मतलब इसको रिमूव करो, इस ब्लॉक को रिमूव करो, इस ब्लॉक को रिमूव, और यहाँ क्या लगा? जैसे स्टैटिक लगाया उसको स्टेप 2 में लिखा था, देखो ये ब्लॉक यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये फिर कहाँ चला गया? ये वेरिएबल कहाँ चली गई? क्लास के मेमोरी में चली गई। ये एवीएस के नोटिस बोर्ड पे चला गया। नोटिस बोर्ड, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज कॉमन टू ऑल द स्टूडेंट्स, पुट ऑन अ नोटिस। जिससे आपका कितना सेविंग हो गया अब तक का? 4 बाइट तो पहले चला गया, हमने कितना सेविंग कर ली? 8 बाइट की सेविंग कर ली। अरे बोलो यार, नहीं है समझ? नहीं है समझ? तो 3 मेमोरी ब्लॉक्स थे यहाँ से। 3 थे, भाई डिस्कशन किया हमने तपन का और मनीष के साथ, तो चला पता है ये वेरिएबल की जो वैल्यू है तो तीनों के लिए क्या रहेंगे? बोलो, सेम रहेंगे। अब तीनों गधे से पूछो, बोलेंगे कॉलेज का एरिया इतना है जी, इतना एरिया, इतना एरिया, सेम एरिया। अगर तीनों सारा सेम एरिया बोलता है तो उसको कहाँ पे डाल दो? क्लास की मेमोरी में रख दो, न कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी में रख दो। मतलब अगर मैं कहता हूँ कल क्लास नहीं होगी, आप डाल दो नोटिस बोर्ड के ऊपर, यार हर को कॉल मत करो इंडिविजुअल। तो तभी मेमोरी तो लेगा ना। डार्लिंग कितना लिया? 4 बाइट लिया ना। अगर हर के घड़े में जाना तो 4 बाइट। तो 4 यहाँ था, 4 वहाँ था, 4 यहाँ था, 12 बाइट था। एक और बना दो, नॉन वेस्ट टाइप एक और बना दो, तो 16 बाइट होना चाहिए था। अब कितना हो गया आपको बोलो? 12 बाइट का सेविंग हो रहा है। मतलब जैसे वैसे बढ़ता जाएगा आपकी सेविंग, क्या बोलो, बढ़ती जाएगी। नहीं है सर? तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी के ऊपर ऑप्टिमाइज हो रहा है। कौन? स्टैटिक वेरिएबल। और बेस्ट पार्ट, इफ यू चेंज वंस इट रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। So what is this process called like? इसको ये बोलो सर, इफ एनी वेरिएबल इज preceded with a keyword called static, means those variable value and those variable cannot be part of an object, rather than those variable is staying in the memory of class, and every object is belonging to what? Class. There are 3 students in a classroom. I don't want to call personally all the 3 students to say we will not have class tomorrow. Rather, I will go to Dipti, talk to Dipti, and will put on a notice board, you will not have a class tomorrow. Otherwise, she has to call 3 times 3 different students. Why do people like this? When any information you fill is common to all the objects, you go for static, so that it can improve the memory management, resultant, and the base part, optimization. How? If you change once, it reflects everywhere. And a time-consuming process to call everyone individual. And scalability as well. Exactly. ठीक है? अब ये बेटे दोनों क्या रहेंगे? बोलो, मेंबर वेरिएबल। अब सुनना मेरी बात। वैसे ही अंकल, अब गलगोटिया कॉलेज की भी कहानी अपनी अलग होगी। अरे बोलो यार, वो भी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। अरे बोलो, तो उसकी अपनी राम कहानी है, नहीं है इसमें। और आप बेटे श्रीवास्तव, अभी आप इस ऑब्जेक्ट को, 3 ऑब्जेक्ट को इससे मत देखो। अरे बोलो, वो जो अलग कॉलेज के मालिक हैं, उनकी अर्निंग इनकी अर्निंग को मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे अब 2 दिखा दो, ऑब्जेक्ट के ब्लॉक में गई, और यहाँ दिखा दो दिस और दिस, और स्टैटिक नहीं गया, हो गई। डोंट वेस्ट टाइम, एक को निकाल, टाइम मत खराब करो, ठीक है? टॉपिक क्या है? स्टैटिक, एक्सट्रैक्ट, सेट।
I spared 3 to 4 minutes. Proper optimization. Time is the most important factor in interview. 3 to 4 minutes for explaining this figure with a proper pencil with a diagram. Now, sir, what is static class? It means if you make a flat, हाँ बोलो, हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो। नहीं तो बेटा उसका सिलेबस कहाँ है? सिलेबस कहाँ है? नहीं तो सक्सेना ये सही, अभी सक्सेना जिस मेरे पास कॉल आया था कि मेरे को अब तक मेरे को सिलेबस नहीं भेजा सर ने। नहीं, जो आपको रिफाइनिंग करके देना था, सक्सेना ने कहा कि मेरे को बात भी थी लास्ट टाइम संडे को, इसे तो मैं आपको कॉल करता हूँ घंटे क्लास के बाद, ठीक है? मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, शिट। आप बोलते हो नया फैकल्टी लाओ, देखो उस बैच को मैं कैसे पढ़ाऊँ, टाइम ही नहीं। एनीवे, क्या चाहता है? नहीं, आई डोंट वांट स्टैटिक क्लास। अब फर्स्ट सोचो मेरी बात को, आपके एक फ्लैट का एक जो बाथरूम है वो आपके 3 बेडरूम के लिए कॉमन, मानते हो? इसका भी 3 रूम का फ्लैट है, 3 बेडरूम का फ्लैट है, इसके बाथरूम क्या आपके लिए कॉमन है? तो फिर इसके 3 बेडरूम के लिए कॉमन। तो क्या देख रहे हो? स्टैटिक वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल इज हैविंग सम वैल्यू दैट ओनली कैन बी कॉमन टू व्हाट? फॉर योर क्लास एंड हिज ऑब्जेक्ट्स। बट ये दोनों बिलोंगिंग है यूपीटी यूपी। नहीं आ अब मालूम यहाँ पे दे रहा हूं दोनों, जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग, ये सी शार्प है, ओके, स्ट्रिंग एग्जाम डेट, ये मेमोरी वेरिएबल नहीं हो सकता कि तीनों ऑब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा। क्या बना दिया? हो गया। आ जाओ गलगोटिया में, ये भी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अरे बोलो यार, इसके जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी एग्जाम उसी डे के अंदर। हमने यहाँ क्या लिख दिया बोलो? स्ट्रिंग। जो स्टैटिक क्लास एक्सप्लेन करना काफी टफ होता है इंटरव्यू, और उसको थोड़ा एक्सक्यूज कर, सर आई वांट टू गो इन डिटेल्स, इफ यू वांट गिव मी टाइम आई कैन गो, अदरवाइज सॉरी। Well, otherwise I can give you what lightweight definitions. No, you carry on. अब देखिए अंकल, अब यहाँ आगे समझ में बात है? ऊपर चलाइए। हाँ, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या हो गया? हो गया। कंट्रोल सी करा। अब गलगोटिया कॉलेज के मालिक ने क्या करा? बोले यहाँ पे ये लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, ये वाला वेरिएबल ब्लॉक में नहीं आया, ठीक है, दोनों ब्लॉक में नहीं आया। अरे बोलो, बट ये जो कॉलेज एरिया है गलगोटिया कॉलेज का और यहाँ जो कॉलेज एरिया है दोनों डिफरेंट। अरे बोलो यार, ये कहना मुश्किल कि हर कॉलेज का एरिया बोलो कौन होगा? सेम होगा, मतलब ही नहीं बनता। मगर गुरु अब इसको देखिए, विन इन्फॉर्मेशन। अब ये मैंने दे दिया काम तपन और मनीष को, जाओ कि जो क्लास डिजाइन हुई है, क्लास डिजाइन, इसमें देखो मेमोरी कितना ऑप्टिमाइज हो रहा है। अभी फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी बॉस, फंक्शन बाद में बनेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी बाद में, ट्रिगर टेबल सब बाद में बनेंगे, फंक्शन प्रोसेस बाद में बनेंगे। अभी दोनों के पास गई, बहुत लंबी कहानी है, दोनों लैक कर 10 दिन लेगा कम से कम, 2 दिन लेगा वट है। जब उसने ऑप्टिमाइज किया, ये वैलिड है, ब्यूटीफुल है, लाजवाब है, बिल्कुल सेपरेट हो। बट ये देख रहा है कि ये वाली वेरिएबल और ये वाली वेरिएबल
रिपीटेशन Repetition. है, और ये भी रिपीटेशन है, और ये भी रिपीटेशन, और ये भी दोनों है, और ये भी दोनों। बट ये बोलते हैं यार रोल नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकते। अरे बोले यार, और उसका फीस अपना जो ज्यादा है वो ज्यादा है, आपकी फीस इसको मतलब नहीं, इसकी फीस इसको मतलब नहीं, हमारा सेम फीस है मगर मतलब नहीं। ऑफिस जा रहा है ना। हाँ, अलग अलग जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, फीस स्टैटिक हो नहीं सकती। और 12 बच्चे पढ़ेंगे तो एक ही फीस आएगा फिर, राइट। अब ये जो बेटे आपका है, ये एरिया इस कॉलेज के तीनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोलो, इस कॉलेज के लिए कॉमन, और बेटे ये जो ये है दोनों क्लास के लिए। दोनों क्लास के लिए common। इस जगह में जाना है। हाँ, तो when the information is common to all the classes, when the information is common to all the class, remove that variable from all the classes. Yes, sir. When the information is common to all the classes, ये दोनों का ने क्या करा, जहां जहां पे वो वेरिएबल थी एग्जामिनेशन डेट उसको हर क्लास से निकाला और एक नया क्लास फॉर्म किया। नाउ रूल रिमूव दिस, और बोलने को 100 चीज लोग बोल सकते हैं, आपको तरीके से बोलना है। क्लास और क्लास का नाम क्या लगा दिया पहले, क्लास के पहले रुक जाए, अभी स्टार्टिंग मत करवाओ। सब मैं पेंट ब्रश खोलूंगा, बड़ा सही होता है पेंट ब्रश पे काम करना। पेंट ब्रश सही होता है, बड़ा अच्छी आर्ट अच्छी आती है। आई कैन हैव अ बेटर डायग्राम एंड ऑल देयर। पहले पेंट ब्रश ज़्यादा यूज करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करना इजी होता है। स्टैटिक व्हाट हटा दे, कंट्रोल प्लीज नहीं आया सर। अब जोड़ दो, ये वाला क्लास किससे लिंक हो गया बोलो, इस वाले से, और ये वाला क्लास किससे लिंक हो गया बोलो, ये वाले से। नहीं आया सर। अरे गधे, ये अपना यूपीटीयू जो है, आप इसको यहाँ पे कॉमन की जगह बोलो कॉलेज। अब खुश। अब यूपीटीयू अपना एग्जामिनेशन डेट किसको देगा बोलो, एवीएस को भी देगा, और बिल्कुल ठीक है। उठाऊंगा सर्विसिंग गधे, बंद कर दूंगा जान पर। क्या बनाया, स्टैटिक बना दिया यार। अगर कोई चीज स्टैटिक है तो क्या होगा, क्लास के नाम से कॉल होगा। अगर कोई चीज स्टैटिक है तो क्या बोलो, क्लास के नाम से कॉल होगा। अभी कहाँ खो गया आप? मैंने क्या कहा, ये दोनों हैं, ये दोनों किससे कॉल होंगे बोलो, ये दोनों कहाँ गए हैं, ऑब्जेक्ट में। ये दोनों किसके बेटे बिलोंगिंग है, ऑब्जेक्ट के। बट ये बेटा बिलोंगिंग ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये कहाँ पे, मतलब क्लास की मेमोरी में। अगर कोई चीज क्लास की मेमोरी है तो क्लास के नाम से कॉल होगा, दिमाग लगा। अगर कोई चीज बोलो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट डॉट से कॉल होगा। ओके, ये हमने बनाया और ये लगाया स्टैटिक, ये लगाया। बस वो इसी का थोड़ा वेट करता हूँ, स्टैटिक लगा, मैं इतनी बात लगाऊंगा। बस मेरे स्टैटिक लगाने का वेट कर रहा। जहां हमने स्टैटिक लगाई, बंदा शुरू हो गया मेरे ऊपर बरस से, या पागल की तरह, तुमने स्टैटिक क्यों लगाया, मतलब जब हमने स्टैटिक लगा ही दिया वेरिएबल को, अरे यार मतलब ये बंदा एबीएस क्या करेगा, यूपीटीयू डॉट वेरिएबल, तो स्टैटिक है, इस क्लास की ऑब्जेक्ट फिर नहीं बनेगी। अरे बोलो यार, भाई क्या है, क्या हो डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया?
कहाँ दिक्कत है? Access accessing कैसा नहीं है? Like- अरे बेटा, अगर ये क्लास यूपीटीयू है, इसको छोड़, इसको छोड़। एवीएस कैसे एक्सेस करेगा बोलो स्टैटिक वेरिएबल? क्लास का नाम, दो चीज याद रखना लाइफ में, जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट से एक्सेस होती है। जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट में ना जाते हैं, वो क्लास के नाम से एक्सेस होती है। मानते हो? तो ये बंदा कैसे एक्सेस करेगा इस वेरिएबल को? क्लास के नाम से करेगा। और वैसे ही ये तीनों ऑब्जेक्ट ये कॉमन है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट ये कॉमन है, तो ये कैसे एक्सेस करेंगे बोलो? क्लास के नाम से। तो क्लास के नाम से एक ही एक्सेस होगा, बोलो कौन? स्टैटिक। और ये तीनों दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट में गए हैं, तो किससे एक्सेस होगा? ऑब्जेक्ट से। क्लास के नाम से एक्सेस हो रहा है, तो किसी इनहेरिट क्यों करा है? टोटल क्लास का इडियट कहाँ हो रहा है? ये कहना इडियट है, इडियट। 3 idiots. All are idiots, uncle, except uncle. मैं भी idiot हूँ लोग। खुश? आगे तक चलो। सुना गया? अब बताइए तपन जी, आप स्टैटिक बना दी और क्या लगा दिया? मतलब सीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, तो उसने कहा जब तुमने स्टैटिक पहले बना ही दिया, कॉमन जब हो ही गया, तुमने क्लास को स्टैटिक क्यों बनाया? अब बताओ भाई, हमने आपको कॉमन चाहिए था ना, हटा दिया, तो स्टैटिक कर दी। अब ये भी इसको एक्सेस करेगा क्लास के नाम से, और ये भी एक्सेस करेगा, बोलो कौन? क्लास के नाम से। क्यों? वेरिएबल क्या है बोलो? स्टैटिक है। तुमने स्टैटिक क्लास क्यों बनाई? अब बताओ वाला, अब कहानी बताओ। बतलाओ जल्दी बोलो। 10:35 हो गए। सर जो एबीएस का जो एरिया है सर, वो गलगोटिया वाले एक्सेस कर सकता है? गलगोटिया का क्या फायदा? कनेक्ट बता, कनेक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ढक्कन बोले सर, मतलब एक्सेस कर सकता है? अरे यार, ये तुम कहे हैं, मैं कह रहा है इस कॉलेज के एरिया से उस कॉलेज के एरिया को क्या मतलब है? इस कॉलेज का जो एरिया है वो किसके लिए कॉमन है? उनके बच्चे, उनके कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कॉमन है। नहीं समझ में आया? दे मूव, दे वॉक, दे कैन डू व्हाटएवर। भाई यहाँ का जो एरिया है उसके बिलोंगिंग के लिए कॉमन है। अरे बोल यार, आप यहाँ क्यों झाँक रहे हो ढक्कन? आपने कॉलेज में घूमो, एक ही जगह है ना, तो तुमने कहीं कॉलेज में घूम जाकर क्यों देख रहे घूम रहा है जेसस के अंदर? तू नहीं है सर में। अब उसके एरिया को देख क्यों रहे हो? पर दोनों को माइनस कौन कर रहा है बोलो? यूपीटीयू। तो कुछ चीजें दोनों कॉलेज के लिए बोलो क्या है? कॉमन है। हमने क्या स्टैटिक बना दी। अरे बोलो यार, तो क्या देखा? स्टैटिक क्लास हमने लिख दी, उस तरह तो स्टैटिक लिखी क्यों? जब तूने वेरिएबल बना दी, ये अब देख, अब दूर से लग रहा है देखने में, अच्छा ये जो वेरिएबल है ये दोनों सबके लिए क्या बोलो? कॉमन है। और ये जो वेरिएबल है बस इस क्लास के लिए कॉमन है। अरे बोलो यार, और जो ये वेरिएबल है इस क्लास के लिए कॉमन। आपकी बाथरूम आपके घर के लिए केवल कॉमन है। ये कहते हम चला लेना लाइक। हाँ बोलो। हाँ जी, स्टैटिक क्लास उन दोनों क्लासों के लिए कॉमन है। तो अंकल में बना तो दी स्टैटिक वेरिएबल। आपने क्लास के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक, तो ये बंदा भी क्लास के नाम से एक्सेस करेगा, ये बंदा भी क्लास के नाम से करेगा। आपने क्लास उठो, तुम करेगा उठो वहां से उठो। वाई यू हैव मेड क्लास एज स्टैटिक? ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चीजें ही जा सके और इसका ऑब्जेक्ट न बन सके। दिस इज रूल ऑफ इन्फोर्समेंट। This is a rule of enforcement. If I mark class as a static, in short, everything will be static. It's a 3+1 utility. Assume करो वो जो चीज है सबके लिए क्या बोलो? कॉमन। अरे यार सुनो यार सुनो, 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। सुन लीजिए अंकल, आपको ज्यादा समझाएगा। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर का बाथरूम हर के लिए कॉमन है, और उस वाले फ्लोर के लिए कॉमन है। पर 7 फ्लोर के ऊपर जो छत है वो मत कहो गधे, वो किसी एक फ्लोर का है। नहीं ऐसा नहीं, 7 फ्लोर
का छत कितना होगा? 7 होगा। देखो क्लास में नहीं जाते, खोए रहते हैं। अरे खोए चांद नहीं है क्या? खोया चांद क्या है? वो क्या चांद क्लासमान है? ये वो वैसे हैं। ये क्लास में नहीं है बॉस, ये भी मीटिंग कर रहे हैं। अब इनको दीक्षित से मिलना है, माधुरी दीक्षित से, इनको डांस करना है, कथक करना है। ये 50 काम एक साथ कर रहे हैं। अब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं साथ में। ये साले मुझसे ज्यादा बिजी है। कहाँ हो आप? ये मुझसे ज्यादा बिजी हैं। मैं कभी कभी जाता हूँ मॉल, मुझे मिलते हैं बच्चे, जहाँ तक साले भाग जाते हैं कोने में। अभी मैं 2007 में एक मूवी थी जब भी मेट, एक लड़का काफी जीत गया सर, लेके चलो प्लीज दिखाओ। एक लड़की थी काउंसिलर यहाँ पे, गीतिका बत्रा। मैं चल दिखा दे दोनों को। तो जबरदस्ती गए, बैठ गए हॉल में, बैठे हुए हैं। तो एक उठ के इधर से चला गया और साला उठ के चला गया। अब देखिए पूरा रूही साला खाली हो गया। तो निकले, अब बोर मूवी, मुझे मजा नहीं आ रहा था। निकले बाहर घूमने के लिए, सिगरेट पीने। तो साले देखे भाग गए मेरे को। अगर इधर आओ, ना इधर आओ तुम लोग। तो साले वही उस रूम बैठे हुए थे। हाँ वही है। क्यों कहते बोला बैठो ना, क्या बैठ। तो पीछे वाले बोलती है यार अब कितने साले शांत हो गए, इतना हल्ला कर रहे थे। पीछे से किसी का आवाज है, मतलब हम नहीं थे तो हल्ला कर रहे थे आपस में। अभी मैं निकल जाऊँ, इनका आवाज सुनो। सारे आइटम्स हैं, भैंस, गधा, सारे आवाज, वैराइटीज है, वैराइटीज है। 7 फ्लोर, कितने छत? देखिए उसमें कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं इसी छत में हूँ। हाँ ठीक है, प्रिविलेजेस है। जो लास्ट वाला फ्लोर का बंदा है वो ज्यादा अप डाउन कर, मूवमेंट कर सकता है, मगर सब उस छत को यूज कर सकते हैं। इससे कॉमन टैक्स फॉर एवरी, समझ गए? तो दिस सब्जेक्टिव, उठो करे नालायक। दिस सब्जेक्टिव of making a class as a static, I am enforcing this is a common utility for everyone. Sir, I have a question over here. I'm sorry, I missed it. अगर क्लास के पहले बेटा स्टैटिक लग गया तो सुन ले, उस क्लास में आपको स्टैटिक ही चीज होगी। So suppose static was not there, right? Then this variable static string needed would have been accessed by only this particular class UPT, right? They can also access, but I am saying that baby, if you have not made a static one, इस क्लास में और भी सारी चीज हो सकते हैं जो ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस हो सकते हैं। मैंने कहा इस सारे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। Why do we make an object of this class when the information of this class is not, say, this class is running under this, I mean, this class is managing all the classes. So right. So what my question is that I agree that we have not created any objective over here because the information that we have over here is to be shared by all the classes. Correct. I agree. Now, up to now, the activity that has done over here. उठो वहाँ से, उठो बदतमीज, उठो वहाँ से, उठो करे तुम, चलो क्लास से बाहर निकलो, सबसे पहले बाहर निकलो। हाँ चलो बाहर निकलो, बहस मत करना, निकलते जाओ। हाँ करियो। Up to now, as we have not declared this class as static, the only variable that is declared out here can be accessed only by this particular class UPT. By class name. By class name. If class is having any variable as a mark as a static, ensure himself he can access by the class name. Right. Or anyone can be by the class name. Right. Now, up to now, like this class Galgotia, we have the static information. It is only for the Galgotia. For Galgotia. If someone can access, right, they can ask what is the college area, they can ask. Right. But that area is only for that college. For the particular Similarly, for this UPTO, up till now, this string EDATE would be accessed only by the class UPTO, isn't it? How can it be accessed by other classes? Boss, यहाँ पे ऐसे access करे बताता हूँ। यहाँ पे आपका main होगा। आप syntax पीछे क्यों जा रहे हो? Public, static, void, और यहाँ पे क्या होगा?
UPTU dot what? Variable. ठीक है. Right. But this. Similarly, again in this class. So what my question mean is, like, till now, this variable edate is private to this particular class. No, baby. You can make it as a public. यार वो तो होना ही होना है. यहाँ क्या लिखोगे public? So that's what my question is. Till now, it's private. हाँ. Till now, as you have not declared it public, it's private to this particular class UPT, right? Yes. Now that you have declared it public, it can be accessed by all the classes. But in this phenomena, how do you know who is a service class and who is a consumer class? Have you given any particular name No. which can signify it's a common area for everyone? Then. If you make a class as a static, it is 100% confirmed. This is the area, not for self-use, for everyone use. Right. अब इसे तीनों क्लासें एक जैसी हैं अगर बिल्कुल नहीं लगाते हैं। और आप अंकल यहाँ पे अगर हम स्टैटिक लगा देते हैं तो वो it क्लास is a symbolism. करती है हम लोग। It is easy to symbolism or rectify who is providing a service. Easy to trace who is providing a service. Look at website and web service. Multiple website can get a service from web service. But I cannot say web service is a website. Recall my class of web service. One class is having some information. Any website can go for accessing an information. This name should be very unique and meaningful and well structured and well formed. Simply I am a service, not a website. Name signifies to me itself only. If you mark class as a static uncle, it is confirmed, it is unknown, it is known to me, okay, this class with respect to several classes. It makes itself a super class. Yeah. So if I say class is a static, it means this class is connecting to what? Several classes and providing a service. It means this class is not basically made for self-use, for everyone. As you can go to any area and there is a one called bucket called use me. Right. So that particular identification use me is With the information of one class, can be common to all the class. You mark that class as static one. And when the information is common to belonging of that class, you mark variable as a static. नहीं ऐसा नहीं ऐसा तो सात फ्लोर कितने किचन होंगे इसे छोड़ो एक नमूना बैठा हुआ था 2 महीना पहले एक आंख 1 किलोमीटर 2 आंख 2 किलोमीटर सारे खोए रहते हैं क्लास में कहा है इनके मोबाइल रहती है लाइब्रेरी में में चलता रहता है चलता रहता है हम मुड़ेंगे पीछे लेकिन और बिजी हो जाएंगे हम हो जाएंगे सीधा मेरे को देखेंगे गेटिंग यस आई एम गेटिंग सर तो 100 में से 1-2 का भला होता है यार एवरेज फिगर भाई एवरेज फिगर तो जब स्टैटिक क्लास लिखेंगे तो फिर अब आईटी का देखो हमें कितने कैंपस हो रहे हैं किसने कहा आईटी वाले सबकी जॉब लग जाती है किसने कहा आपको लगती है सबकी पर देखो कौन गया ऊंचाई पे कौन गया प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाते हैं सर आईडी मतलब सो स्टैटिक जो वेरिएबल होता है उसका मेमोरी आपने कहा कि क्लास के साथ रिलेटेड होता है हाँ जी और जो स्टैटिक क्लास होती है हाँ जी उसकी मेमोरी वही में yes. डीप नहीं होती है स्टैक में होती है स्टैक में तो what is static class? If any class is declared or marked as a static means the information of this class not for self-use, it is primarily made for everyone. As a word called use me,
सर स्टैटिक से एसोसिएशन कैसे हो रहा है क्लास का? मान लीजिए सर एक क्लास बनाते हैं जो यूपी2 के बिलोंगिंग नहीं देखो है। कर तो दिया, पब्लिक वॉइड मेन में आके क्लास का नाम डॉट दिस। नहीं सर, एक क्लास है जो कोई कॉलेज हमने दिया जो यूपी2 को बिलोंगिंग नहीं, तो उसके लिए भी यूपी2 सेम हो गया जैसे गलगोटिया और एबीएस के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो डिफरेंस क्या रहेगा सर, अगर बिलोंगिंग है हमारी एबीएस और यूपी2? When the variable information is only belonging to particular class, you mark maybe the static variable. True? But when a variable information is common to all the class, remove that variable from every class respectively and allocate or make a new class and give a name called common utility. उसकी अब As मेमोरी a college campus for everyone, but college campus in the same college only. True? But in society there is a place we can have auditorium. So every flat can go for using that area. When the information is served to all the classes, you remove that variable information from every class respectively and mark a new class, make a new class called common utility and give appropriate name that can signify the information of this class is only made for everyone. That's why इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर अभी यहाँ बेटे में स्टैटिक लगा दें तो कोई इसके क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं। और स्टैटिक लग गया तो हर चीज का होगा, बोलो हर चीज स्टैटिक। जहां लिखा हो मिल गया मुझे यूज मी, इसमें एवरीवन में भी एवरीवन। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक, बैठ जाओ। वी विल गो फॉर द क्लास ऑफ C# डेलीगेट।